Hi students, welcome to Get in Bio World. Please like करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. So guys, in our previous video, we already seen about on which basis animals are classified. Now, in today's video, we will see the classification of animal. Broad classification of animal are based on the common fundamental features. Animal classification किस पर based है? On common fundamental features which are given in the table. Now see which are these. अभी वो देखेंगे हम कौन से हैं. Now, first of all, the table which consists of broad classification of kingdom Animalia based on the fundamental features. Now, first of all, the kingdom Animalia is the multicellular animals. Animals कैसे होते सारे के सारे इसमें multicellular means containing the many cells in organisms. Now, these multicellular organisms Animalia divided into the different level of organization. First one is the cellular level of organization. In the cellular level organization, organism perform their main functions on using the cell or on the basis of the cell. That's why it is called as cellular level of organization, and it includes the phylum Porifera. इसमें कौन सा include आएगा? Phylum Porifera. Now another level of organization is tissue, organ and the organ system. The organism in the kingdom Animalia which perform the mainly function or the main important function by using their tissues, organs and the organ system. These consist of the different body symmetry. इनका body symmetry कैसा होता है? Different. Now first one is the radial symmetry, and in this radial symmetry, when any plane passing through the body of the organism, then the body is divided into a equal parts. किधर से भी कोई सा भी प्लेन हम पास कर देंगे, एनी प्लेन पास करेंगे बॉडी के थ्रू में, तो बॉडी किधर साइड से भी जिधर साइड से भी कैसी हो जाएगी, वो हाफ डिवाइड हो जाएगी. इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री. नाउ दिस रेडियल सिमेट्री इंक्लूड द फाइलम. It includes the two phylum. First is Coelenterata, which is also called as Cnidaria, and another one is the Ctenophora. Both Coelenterata and the Ctenophora are formed in the consist of the radial symmetry. Now another symmetry is the bilateral symmetry, and in this bilateral symmetry, when only one plane passes through the organism, then the body is divided into only half राइट एंड द हाफ लेफ्ट पोर्शन. बॉडी में सिर्फ एक ही प्लेन पास होगा जो बॉडी को सिर्फ सिमेट्रिकल हाफ एंड द सिमेट्रिकल लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करेगा, एंड बोथ हाफ एंड लेफ्ट पोर्शन आर सिमिलर विथ ईच अदर. दोनों के दोनों सिमिलर रहेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री, एंड दिस बायलैटरल सिमेट्री इंक्लूड द डिफरेंट बॉडी कैविटी. इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी आर प्रेजेंट एंड सम एनिमल्स बॉडी कैविटी आर प्रेजेंट. नाउ सी विदाउट बॉडी कैविटी जिस एनिमल्स में नहीं होती है, विच इज़ कॉल्ड एज असिलोमेट्स. इसको बोलेंगे असिलोमेट्स विथ फाल्स सिलोएम, विच इज़ कॉल्ड एज सीडोसिलोमेट्स. Some animals consist of fast coelomates, means organism consist of the embryonic stage. जब organism का embryonic stage होता है, at that time of the embryonic stage, the body embryonic stage, it consists of the three layers: ectoderm, endoderm, and inside the ectoderm and the endoderm, between these two layers, pouches type mesoderm is present. mesoderm कैसे present होता है? pouches like structure में present होता है, which is called as the pseudocoelomates, and next one is the true coelom. means इसमें कैसा होता है? the ectoderm and the endoderm, inside or between this ectoderm and endoderm, mesoderms are present, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ द पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है. इसको बोलेंगे ट्रू सिलोएम, एंड इट्स एनिमल इज कॉल्ड एज सिलोमेट्स, एंड द एनिमल कंसिस्ट ऑफ द फास्ट सिलोएम विच इज कॉल्ड एज द सीडोसिलोमेट्स, एंड द विदाउट द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज असिलोमेट्स. Now this asilomate consists of the phylum Platyhelminthes. A body consists of the cavity with pseudocoelomates is called as Aschelhelminthes. इसको बोलेंगे Aschelhelminthes, and the body cavity which is true coelom is called animal known as coelomates, and in this animal the phylum consists of Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and the Hemichordata and the Chordata. All these are the broad classification of the animals kingdom Animalia on the basis of the fundamental features. Now we will see the first topic, kingdom phylum Porifera. अभी सबसे पहले हम phylum Porifera देखेंगे. See दिस फाइलम पोरीफेरा. अभी क्या होता है इसका डिटेल स्ट्रक्चर वी विल सी इन डिटेल स्ट्रक्चर. नाउ सी फर्स्ट टॉपिक
Phylum Porifera. These member of these phylums are commonly known as sponges. अब इसके members को बोलेंगे Porifera के members को sponges. These are generally marine. अभी mainly कैसे होते हैं ये sea water में present होते हैं marine and mostly asymmetrical nature. और इसका nature कैसा होता है asymmetrical. And these are primitive multicellular animals and have a cellular level of organization. ये कैसे होते हैं primitive मतलब old जब उनकी first body डिस्कवर होती है तभी से ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं मीन्स ऑर्गेनिज्म हैविंग द मैनी सेल्स इन देयर बॉडी एंड दे हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसका बॉडी का जो परफॉर्म होता है वर्क मेन फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं विच इज़ डिपेंड ऑन ओनली सेल दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम अभी स्पॉन्जेस में कैसा होता है एक सिस्टम होती है वाटर लेवल का जो वाटर को पास करती है वाटर ट्रांसपोर्ट करती है और कैनाल के थ्रू होता है नालियों में से एंड इसको बोलेंगे कैनाल सिस्टम एंड द वाटर एंटर्स थ्रू द माइनर पोर फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फिगर ऑफ द स्पॉन्जेस सी हियर दिस आर द फिगर्स ऑफ द स्पॉन्जेस एंड ऑन द वॉल ऑफ द स्पॉन्जेस की वॉल्स के ऊपर क्या रहते हैं माइनर पोर्स द वाटर एंटर्स थ्रू द माइनर पोर्स in the body wall into a central cavity and is first of all on the surface of the body of the sponges the cell wall is present and the cell wall or body wall consists of the minute pore means small holes pore means hole बारीक बारीक सुराख like structure होती है which is called ostia and from this ostia the water enters उसमें से क्या होता है बॉडी वॉल से जो होल रहते हैं सुराख बारीक होल उसमें से वाटर इंटर होता है into a central cavity बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है सेंटर में मीन्स खाली जगह स्पेस होती है एंड द वाटर इज गेट कलेक्टेड फ्रॉम द इनसाइड द सेंट्रल कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्जियल इसको बोलेंगे स्पॉन्जियल फ्रॉम वेयर इट गोज़ आउट थ्रू द ऑस्कुलम और उसके बाद वहाँ जमा होकर क्या होता है गोज़ आउट उसके बाद बाहर की तरफ निकल जाता है विच इज़ कॉल्ड एज ऑस्कुलम नोन एज ऑस्कुलम और जो बाहर आउटसाइड जो वाटर सीक्रेट हो जाता है दैट प्लेस इज नोन एज द ऑस्कुलम Now next one is this pathway of water transport is helpful in food gathering. ये है जो पाथवे होता है वाटर का ट्रांसफ़र का विच हेल्प इन द फूड गैदरिंग इसके थ्रू पानी के थ्रू क्या होता है इंटर होता है फूड और आउटसाइड में निकल जाता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अभी ये दूसरा हेल्प क्या है इसका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मीन्स उसका जो सांस जो रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट जब वाटर सारा का सारा एक्सक्रीट आउट होता है तो उसके साथ साथ और उसके थ्रू भी क्या निकल जाता है वेस्ट का रिमूवल भी हो जाता है नाउ छाउनोसाइट्स और कोलार सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसेल जो स्पॉन्जोसियल होता है उसको लाइनिंग होती है किसके कोलार सेल्स के और सिनोसाइट्स के नाउ The digestion is intracellular. Digestion कहता होता है intra means inner side of the cell is called as intracellular. The body is supported by the skeleton made up of spicules or spongin fibers. जो body support करती है skeleton से थ्रू और skeleton बनता है किससे it is made up of spicules और the spongian fiber दोनों से मिलकर बना होता है. Now next one is the सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इसमें क्या होता है स्पॉन्जेस की बॉडी में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते बोथ आर प्रेजेंट कैसे होते हैं ये बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल मीन्स हर्माफ्रोडाइट कैसे होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं मीन्स एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल एक ही इंडिविजुअल है इसके इनसाइड में एग भी प्रोड्यूस होगा और स्पर्म भी प्रोड्यूस होगा दोनों के दोनों एक ही बॉडी में प्रोड्यूस होंगे एक ही इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होंगे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी हर्माफ्रोडाइट नाउ स्पॉन्जेस आर प्रोड्यूस्ड असेक्चुअली बाय फ्रैगमेंटेशन अभी सेक्सस के थ्रू हो गया तो हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होता है और असेक्चुअली प्रोड्यूस होगा तो बाय द फर्मेंटेशन फॉर्म होगा और सेक्चुअली में गैमेट्स फॉर्म हो गए सेक्चुअली प्रोड्यूस होगा तो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मींस एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस होगा इन द सेम सिमिलर इंडिविजुअल नाउ फर्टिलाइजेशन इज एन इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है इनसाइड द बॉडी एंड डेवलपमेंट इज indirect having a larval stage which is morphologically distinct from the adult stage अभी फर्टिलाइजेशन हो गया और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया डेवलपमेंट जो लार्वा बनता है उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है मीन्स द आउटर साइड बॉडी स्ट्रक्चर जो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है फिजिकल अपीयरेंस होता है विच इज़ डिस्टिंक्ट मीन्स अलग होता है फ्रॉम द अडल्ट जब वो लार्वा होता है तो वो अलग दिखता है और जब अडल्ट डेवलप होकर जो अडल्ट फॉर्म होता है तो वो अलग दिखता है मीन्स मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट एग्जाम्पल इज साइकोन
present in Psychopha, Spongilla present in fresh water, and the Esophagia present in both sponges, bath sponges. Understand? Now see the next topic, which is next phylum means Coelenterata. Is commonly known as Cnidaria. इसको दो नेम है, एक Coelenterata बोलेंगे, it's also called as the Cnidaria. Now both these phylum Coelenterata and the Cnidaria are aquatic animals. कैसे होते हैं? Live in the water mainly और mostly live in the marine means sea water में, salty water में रहते हैं. Sessile और फ्री स्विमिंग. सेसाइल मीन्स नॉट मूवेबल, इमूवेबल मीन्स जगह से हिलते नहीं है. और फ्रीली स्विमिंग, कभी कभी कैसे भी हो जाते हैं वो इजीली फ्रीली स्विमिंग करते हैं वाटर में, एक्वेटिक वाटर में. ना रेडियली मोस्ट सिमेट्रिकल एनिमल्स. और रेडियली कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल्स मीन इन द एनी प्लेन इंटर इन द बॉडी ऑफ द सिलेंट्रेटा दी बोथ सिमिलर हाफ पोर्शंस फॉर्म. जब किधर से भी बॉडी में क्या किया हमने, प्लेन इंटर किया उसके, तो दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा, वो दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा. द नेम स्नाइडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नाइडोब्लास्ट. नेम ड्राइव स्नाइडेरिया किधर से आया, किधर से मिला अपने को? नाइडोब्लास्ट से हासिल हुआ. और दी सिनेडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल. मीन्स क्या हो गया, उसके सिनेडोब्लास्ट का एक कैप्सूल होता है जो लटकता हुआ था, स्टिंगिंग मीन्स सी दिस फिगर. एक कैप्सूल कैसा है और वो स्टिंगिंग है मीन्स लटकता हुआ है. विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी. और ये सारा का सारा किधर प्रोड्यूस होता है? उसकी बॉडी पे जब टेंटेकल्स रहते हैं. टेंटेकल्स मीन्स फाइलम. सी फिगर ऑफ द सिलेंट्रेटा. दिस आर दी फिगर ऑफ द सिलेंट्रेटा. अभी इसके जो क्या है, लंबे लंबे स्ट्रक्चर है ना, ये टेंटेकल्स रहता है इसके ऊपर. मीन्स अ पोर्शन वेयर द बॉडी इज स्टिक होता है इसके ऊपर, सम पोर्शन इज कॉल्ड एज टेंटेकल्स. नाउ ऑन दिस टेंटेकल्स the सिनेडोसाइट्स और the सिनेडोब्लास्ट आर प्रेजेंट. इसकी बॉडी के ऊपर और टेंटेकल्स के ऊपर सिनेडोब्लास्ट और सिनेडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. कैसे होते हैं? स्टिंगिंग कैप्सूल में होते हैं, जिसमें हैंगिंग फॉर्म में होते हैं, लटकते हुए होते हैं हैंगिंग फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट वन इज द सिनेडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर द एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्री. और जो सिनेडोब्लास्ट होते हैं, टेंटाकल्स होते हैं बॉडी में ऐसे लटके हुए, ये किस लिए यूज होते हैं? एंकरेज के लिए मीन्स सपोर्ट लेने के लिए. डिफेंस मीन्स दूसरों से अपनी हिफाजत करने के लिए, डिफेंस के लिए. एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, और जो उसका दुश्मन होता है उसको पकड़ने के लिए, कैप्चरिंग करने के लिए होते हैं वो द सिनेडोब्लास्ट. सिनेडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी सिनेडेरियन क्या एग्जिबिट करते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन द मेन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू. दैट्स वाई द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू. एंड आर डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इसके ब्लास्टिक कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. दे हैव एन सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी. और इसका डाइजेशन सिस्टम कैसा होता है? डाइजेशन और द ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में होता है विथ अ सिंगल ओपनिंग. और इसमें जो एक ही ओपनिंग के थ्रू होता है. विद द हेल्प ऑफ द वन ओपनिंग द गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी और द गैस्ट्रोवस्कुलर एक्शन परफॉर्म. एंड दिस कैविटी और दिस ओपनिंग इज नोन एज हाइपोस्टोम. बोथ इंटेस्टाइनल और बोथ ब्लड मीन्स गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट होती है हाइपोस्टोम. और इसकी एक ही ओपनिंग के थ्रू होता है, इसको बोलेंगे हाइपोस्टोम. नाउ नेक्स्ट वन इज द डाइजेशन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. डाइजेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इनसाइड द बॉडी मीन्स इंट्रासेलुलर, और इनसाइड द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर. सम ऑफ द स्नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन. और कुछ को स्केलेटन होते हैं कोरल्स को, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. किससे बने होते हैं वो? कैल्शियम कार्बोनेट से. सिनेडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड एज पॉलीपी एंड द मिडोसा. अभी जो सिनेडेरियंस होते हैं कॉमनली इनका बॉडी फीचर्स में और बॉडी फॉर्म्स टू टाइप्स का होता है, वन पॉलीपी एंड द मिडोसोआ. वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक द ऑरेलिया और जेलीफिश. जो होता है इसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप होता है. सी दिस वन इज द अम्ब्रेला शेप है and which is Medozoa and it is called as Medozoa. And another is the those see
One is the whereas the latter is umbrella shaped and freely swimming like Aurelia और jellyfish. ये स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, लाइक अ जेलीफिश होते हैं, और ये क्या अम्ब्रेला का शेप होता है इनका फॉर्म. एंड इट इज़ ऑरेलिया, एग्जाम्पल है इसका ऑरेलिया. एंड दो सिनेडेरियन विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और जो बहुत सारे कैसे होते हैं, एग्जिबिट इन द टू फॉर्म. कैसे एग्जिबिट होते हैं, इन द टू फॉर्म, बोथ दी फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है. बहुत सारे सिनेडेरियर में कैसा होता है, दोनों भी फॉर्म पाए जाते हैं, एग्जिबिट करते हैं. मीन्स इसमें कैसा होता है, मीडोसोआ भी होता है और सेकेंड पॉलीपी स्ट्रक्चर, दो फॉर्म वाला स्ट्रक्चर होता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. और इसमें जनरेशन का चेंजेस चलता रहता है, विच इज़ कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, और इसको बोलेंगे मेटाजेनेसिस. पॉलीपी प्रोड्यूसेस मेडोसोआ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ये पॉलीपी, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीपी, इट इज़ प्रोड्यूस मेडुजोआ आसेक्चुअली. अब ये पॉलीपी रहता है तो इससे क्या बनता है, मेडुजोआ वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है थ्रू आसेक्चुअली. एंड दिस मेडुजोआ फॉर्म्स द पॉलीपीज सेक्चुअली. और उसके बाद ये वाला पॉलीपी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट, मेडुसोआ किस में कन्वर्ट होता है, पॉलीपी स्ट्रक्चर में. नाउ दैट्स वाई द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिबिट इन द सम इंडिविजुअल्स ऑफ द सिनेडेरियंस. अभी इसका फॉर्म मतलब क्या हो गया, सिनेडेरियंस में कुछ सम क्या करते हैं, सम एनिमल्स एग्जिबिट द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन. मीन्स पॉलीपी इज कन्वर्टेड इनटू और प्रोड्यूस इनटू मेडुसोआ asexually and the medusoa sexually converted into polyps. Means alternation of generation takes place in the Cnidarian. And this alternation of generation is known as the metagenesis, और इसको बोलेंगे हम metagenesis. Now next one is example is Physalia Portuguese man of war. इसका example है Physalia. Adamasia sea anemone को बोलेंगे. And the Pinetola and sea pen. Gorgonia means sea fan and the Mindaria मतलब brain coral. All these are the examples of the phylum. All these are the examples of the phylum Coelentera, which is also called as the Cnidaria. Understand all of you?